Hello everyone, this is CP Aryan and you are watching Aryan's Learning Classes. Dear friends, today we will discuss about the industrial sector, chapter 1, Indian economy on the eve of the independence for class 11. Till now, if you didn't watch my previous video part 1, please go through description. Link has given, first watch it then come to this video. Let's begin today's content. Today's content is industrial sector. Before starting, I gonna tell you that here are some economic or new terms given. I will try to connect these keywords which can be very helpful and useful to do an explanation. First we will read them, right? A strong industrial base. Strong industrial base means मजबूत औद्योगिकरण आधार, right? Handicraft industries, handmade goods were produced in the Indian industry, right? And decline means patan hona, and dominate means ruled by British government on the colonial country in India with full access, right? Deindustrialization means remove the industries, right? And pride of place, own position we can say, and the prominent position. Primary objective, primary motive means main motive, मुख्य उद्देश्य. Two-fold policy, दोहरी नीति. Mere exporter means only to become an export country, right? And colonial country means British government, British ruled, right? And sprawling market, big market, right? And ensured means निश्चित करना, right? निश्चित हो जाना, ensured. So these are some keywords. Now we know that agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, right? But the manufacturing sector, we can say industrial sector or secondary sector, India could not develop a strong industrial base under the British rule. Even Indian handicraft industries could not make their own position, earlier position, we can say pride or place. But why? What is the reason? Because Indian handicraft industries were declined. Now question arises here, why Britishers wanted to decline? Why Britishers, why colonial rule, why Britishers wanted to decline Indian handicraft industries? And what were the main reason? Because they were looking dual policy. They were looking dual policy, which was known as two-fold policy. जिसको क्या कहा जाता था? दोहरी नीति कहा जाता था. Now, what were the primary objective to introduce two-fold policy? भाई जो two-fold policy ने दोहरी नीति भारत में स्टार्ट की, तो उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? The first one is they wanted to India a mere exporter or supplier country for British industry in futures. क्योंकि उनका जो मेन पर्पस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करने का, उसके पीछे कि वो इंडिया को केवल एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते थे. क्योंकि उनकी प्लानिंग जो थी कि ब्रिटेन में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एक्सपेंड करना था, राइट? एंड द सेकंड वन इज दे वांटेड टू मेक इंडिया अ बिग इम्पोर्टर और कंज्यूमर कंट्री ऑफ द फाइनल गुड्स विच वर प्रोड्यूसिंग इन देयर कंट्री. उनके देश में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे उसका बहुत बड़ा आयातक देश बनाना, इम्पोर्टर कंट्री, वो कंज्यूमर कंट्री बनाना चाहते थे इंडिया को. एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एंश्योर, और वो सुनिश्चित करना चाहते थे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ देयर होम कंट्री. वो अपने होम कंट्री के लिए अधिक से अधिक जो है वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, राइट? नाउ हाउ ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंटेड टू-फोल्ड पॉलिसी, एज ए रिजल्ट दे गॉट सक्सेस इन देयर स्ट्रैटेजी. देखिए उन्हें टू-फोल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया कि उसके पीछे रीज़न क्या था, राइट? उसके पीछे दो रीज़न हमने पढ़ लिए. पहला कि वो
हमारे देश को एक जो है एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते थे, और दूसरा हमारे देश को वो इम्पोर्टर कंट्री भी बनाना चाहते थे। और इम्पोर्टर कंट्री किसका? जो गुड्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जा रहे थे, राइट। लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी को, इस टू फोल्ड पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया, राइट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दे फॉलोड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने जो है एक भेदभावपूर्ण कर नीति को अपनाया। इट वॉज नोन एज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग दे अलाउड फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से जो रॉ मटेरियल उनके देश जाएगा वो फ्री में जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। एंड they also allowed free import of finished goods which were produced in British industry, and it will come free of cost. There will be no taxes, right. But heavy taxes were imposed on the export of Indian handicraft industry. लेकिन उन्होंने जो है एक ऐसी नीति अपनाई कि उन्होंने कहा भाई इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा, अगर उसको उनके देश अगर बाहर जाता है, किसी आउट ऑफ कंट्री जाता है, तो उसमें उनको बहुत भारी मात्रा में जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो एज ए रिजल्ट इंडियन मार्केट वर फुल विथ ब्रिटिश गुड्स विथ लोअर प्राइस। अब परिणाम क्या होना था कि जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था उसकी कॉस्ट लो हो गई, and which goods were produced in Indian handicraft industries and it was expensive. So इस तरह से जो है the market for handicraft industry was means reduced, right. So in this way Britishers were successful to their strategy through discriminatory policy, right. Let's see continue this topic. Now some more economic terms, right. Now some more economic terms related to this contents. I expect you will be familiar with these terms. Economic scenario, आर्थिक परिदृश्य, right. Indigenous means domestic, right. Modern industry, वर्तमान फैक्ट्रियाँ. Foreigners and Bengal, you will know that. Confined मीन्स सीमित रह जाना, किसी पर्टिकुलर एरिया पर कन्फाइंड हो जाना मीन्स सीमित हो जाना. आयरन एंड स्टील, एवरीबडी नो. मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी. कंज्यूमर मार्केट मीन्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. कॉटन जूट टेक्सटाइल मिल्स, यू नो. एंड टिस्को इनकॉर्पोरेटेड Tata Iron and Steel Company was established in India 1907. Deprived means वंचित हो जाना किसी चीज़ से, right. Cheap, सस्ता. Western part of Maharashtra and Gujarat, you know. And sugar, cement, paper, Second World War, everybody know that, right. Now if we look at economic scenario, अगर हम आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से देखें, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस मीन्स इंडिजीनियस और होममेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. एंड व्हाट आर द रीजन? अगर ये इंडिजीनियस गुड्स जो है इसके डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट्स वाज क्रिएटेड ऑल अराउंड इन इंडिया. अगर हम आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से देखें कि जब जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर पतन हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी बहुत भारी संख्या में फैल गई, राइट. एज ए रिजल्ट न्यू डिमांड इंक्रीज्ड इन कंज्यूमर मार्केट. अब जो है कंज्यूमर मार्केट में जो है वो नई डिमांड जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई. टिल नाउ, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज टिल नाउ they were not getting supply of handmade goods, क्योंकि उनको अभी हैंडमेड गुड्स जो है उनको नहीं मिल पा रहा था. बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे वर डिप्राइव्ड टू गेट
विच वर प्रोड्यूस्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि अभी तक जो था, जो हैंडमेड गुड्स जो थे वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, और वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे और उनकी सप्लाई जो है उनको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की से बनने वाले जो गुड्स जो थे वो जो है एक्सपेंसिव थे, और उनकी जो है पूर्ति यहाँ हमारे देश में जो है कंज्यूमर मार्केट में नहीं हो पा रही थी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, नाउ अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, हाउ दिस डिमांड वॉज फुलफिल्ड। जब कंज्यूमर मार्केट में न्यू डिमांड इंक्रीज हो गई तो इसकी डिमांड को पूरा कैसे किया गया? It was met by increasing the import of finished product with the lower cost and which were producing in British industry. अब ये कंज्यूमर मार्केट में जो नई डिमांड आ गई तो ये डिमांड कैसे फुलफिल गई है? क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो गुड्स बन रहा था इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव रेदर देन हैंडमेड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उससे कहीं ज़्यादा वो सस्ता था। तो इस तरह से जो है कंज्यूमर मार्केट में जो है गुड्स की डिमांड को फुलफिल किया गया, राइट। नाउ सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के उसमें देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं वर सेटअप इन इंडिया, राइट, एंड बट देयर प्रोग्रेस रिमेन स्लो। अब क्या हुआ, अगर हम 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में देखते हैं तो यहाँ हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई थी, राइट, पर उनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत स्लो था। दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटअप, दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड, where it is written confined, right, confined, right, this development was confined, we can say, to set up cotton, jute and textile mills, right। जो ये जो इंडस्ट्रियाँ जो थी, राइट, ये जो थी कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है की फैक्ट्रियाँ थी, एंड ये जो डेवलपमेंट था केवल इन्हीं जो है सेक्टर तक जो है वो सीमित बनकर रह गया, राइट। सो द कॉटन टेक्सटाइल, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं, वर डोमिनेटेड बाय इंडियन, स्पेशली इन वेस्टर्न पार्ट। अभी जो कॉटन टेक्सटाइल थी इसको पूरी तरह से इंडियंस ने डोमिनेट कर रखा था, स्पेशली वी कैन से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में स्पेशली जो है कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनको इंडियंस ने डोमिनेट करके रखा हुआ था। बट जूट इंडस्ट्री, अगर हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, इट वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स इन बंगाल, और ये जो जूट मिल्स थी इनको फॉरेनर्स ने जो है वो बंगाल में इनको डोमिनेट करके रखा हुआ था। एंड आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन 1907 इन जमशेदपुर, बिहार। उसके बाद 1907 में बिहार के जमशेदपुर नामक स्थान पर जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, राइट। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज ऑल्सो सेटअप इन इंडिया। Let's continue this topic. Now some new economic terms. तो again we remind it, hardly, मुश्किल से। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? कैपिटल इंडस्ट्री गुड्स वो होती हैं कि ऐसे गुड्स जो मशीन टूल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जो गुड्स रेफर दोज गुड्स विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, राइट, machine tools made by you can say which are used producing articles for current consumption। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे गुड्स होते हैं जो छोटे छोटे मशीनों को बनाते हैं और जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने में मदद मिलती है, और टूल्स भी बनाते हैं, प्रोड्यूस आर्टिकल्स फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड करंट कंजप्शन, राइट। उसके अलावा gross domestic product, the total value of final goods and services produced within a year, that is known as GDP। अब GDP को हम जो है डिटेल से और नेशनल इनकम वाले चैप्टर में
बताएंगे, राइट। सो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एवरीबॉडी नो। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड औद्योगिकरण। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, एवरीबॉडी नो। रेलवे, कम्युनिकेशन, संचार, एंड मशीन टूल्स मीन्स कलपुर्जे जिसे कहते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स, different types of goods which are very useful for day to day consumption. Handicraft, handmade goods, and industries, factory and ports means bandargah, right? Now connecting these economic terms, now the question arises here, why industrialization could not got promotion in India itself? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारे देश में, वो उसको बढ़ावा क्यों नहीं मिला, राइट? बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बहुत कम संख्या में थी। विच कुड बी प्रोड्यूस मशीन टूल्स, विच कुड बी प्रोड्यूस मशीन टूल्स, राइट? एंड machine tools for another small scale industry, making articles for self consumption and current consumption. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं जो दूसरे उद्योगों में काम आती हैं, और जो कलपुर्जे वगैरह बनाते हैं, राइट? और तरह तरह के जो है वो टूल्स वगैरह बनाती हैं जो दूसरे उद्योगों में काम आते हैं। तो कैपिटल गुड्स बहुत कम होने की वजह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिल पाया, राइट? एंड दे वांटेड टू दैट इंडिया ऑलवेज, और दूसरा चीज़ ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एक डिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। ब्रिटिशर ऑलवेज वांटेड दैट कि हैवी इक्विपमेंट्स ऑलवेज शुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, और उसी पे जो है इंडिया के लोग जो हैं वो क्या रहे, वो डिपेंडेंट रहे, राइट? एंड for few manufacturing, apart from that few manufacturing units are also established. इंडिया में बहुत सारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यहाँ पर एस्टेब्लिश, बट दे वर नॉट एनफ टू रिकवर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और हमारे देश में जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, राइट, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को रिकवर नहीं कर पाई, राइट? द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट था, ठीक है ना, यहाँ पर PROD इट मीन्स प्रोडक्ट है ये, राइट? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है वो ग्रोथ रेट भी बहुत कम रहा, राइट? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, राइट? तो एक साल में, और फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, जो तीनों सेक्टर जो आय हमारे देश में प्रोड्यूस की जाती है एक साल में, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और इस GDP के बारे में हम क्लास 12th की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, राइट? सो एंड नाउ मोस्ट ड्रॉबैक, उसके अलावा जो हमारे कंट्री में जो मोस्ट ड्रॉबैक हुए वो क्या थे? वो मोस्ट ड्रॉबैक हम जानते हैं दैट लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइट? तो पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड रहा। दिस सेक्टर वाज इन्वॉल्व ओनली, और ये सेक्टर किस किस जो है सेक्टर में जो है वो किस किस इंडस्ट्री में जो था ये इन्वॉल्व था? जैसे रेलवे था, राइट? पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स एंड बंदरगाह, राइट? तो केवल इन्हीं सेक्टरों में जो है वो इन्वॉल्व रहा, राइट? फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड। अगर हम फाइनली अगर देखते हैं कि इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के दौरान जो था वो इंडिया पूरी तरह से, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो केवल जो है बैकवर्ड बनकर ही रह गया। नाउ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, लेट्स सी। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, अब हमारे पास, हमने इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ इसको रिकैप करते हैं और रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इसको ध्यान से समझा है तो इसके क्वेश्चंस के आंसर को हमें फाइंड करने में जो है डिफ़िकल्ट
डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई ब्रिटिशर्स वांटेड टू डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। मैंने केवल एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका आंसर, ड्यू टू टू फोल्ड पॉलिसी। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का पतन क्यों करना चाहते थे, ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को क्यों हटाना चाहते थे, उसके पीछे क्या पॉलिसी थी, टू फोल्ड पॉलिसी। वो टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी? द फर्स्ट वन इज दे वांटेड टू मेक अ इंडिया, to get a raw material from India at a cheap rates, and they wanted to make India only a exporter country, right? और दूसरा क्या था? They wanted to make India importer country of finished product which were produced in in British industries, right? So this is the answer of this question. How Britishers डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे डिक्लाइन किया, उन्हें ऐसी कौन सी प्लानिंग की, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी की जिसकी वजह से उन्होंने जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करके रख दिया। तो वो क्या थी? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभावपूर्ण नीति अपनाई थी ना। तो ये पॉलिसी क्या थी? दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड इट वॉज ऑल्सो फ्री, राइट। देयर वॉज नो टैक्स, राइट। इनमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था, लेकिन टैक्स किस में था? बट हैवी टैक्सेस were imposed in the export of Indian handicraft industries. इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बनने वाले जो भी प्रोडक्ट थे, अगर वो बाहर जाते थे तो उन पर जो है भारी मात्रा में कर लगाया जाता था, एंड इट वाज नोन एज जो है हैवी टैक्सेस, राइट। जिनको कहते हैं टैरिफ, जिसको कहा जाता है टैरिफ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंडियन रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के दौरान जो है इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बैकवर्ड बन के क्यों रह गया, इसकी रीज़न हमने भी पढ़ा जस्ट नाउ। डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारे कंट्री में जो है वो इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, या उसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उद्योगों का पतन होने का मतलब क्या? फैक्ट्रियाँ कम हो रही थी, इसका मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, राइट। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रहा था, उसके पीछे क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हो रही थी? ड्यू टू टू फोल्ड पॉलिसी। और कैसे हुई उसको एग्जीक्यूट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट वन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन तो हो गई, उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ? The Indian handicraft resulted unemployment on massive scale, because the laborers and artisans were forced to take up agriculture for their livelihood, and this burden increased in the population of villages, and in agriculture there was a overcrowding. यही स्थिति पैदा हो गई क्योंकि कृषि पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया, राइट। और अधिकतर लोग जो हैं वो कृषि को खेती करने के लिए मजबूर हो गए, राइट। इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। एंड लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारी कंट्री में क्या था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत कम हो रही थी, लेस नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? जो अदर टूल्स बनाती है, जो छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें काम आने वाले कल पुर्जे वगैरह, मशीन वगैरह बनाती हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, करंट कंजम्पशन के लिए। तो ये क्या हो गया था? ये हमारे देश में कैपिटल गुड्स की कमी हो गई थी। लो लेवल ऑफ जीडीपी, अब लो लेवल ऑफ जीडीपी का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन लो लेवल ऑफ रिमेन्ड वेरी स्मॉल। तो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो गया था, राइट। एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, आपको पता है कि द लिमिटेड रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्पेशली पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड only the railway, power generation, communication, ports, some other departmental undertaking. Finally, it can be concluded that India remained backward in the industrial sector during the British rule. Now, so I hope you understand very well. In next video, we will discuss about new content foreign trade during British rule. If you like this video, please subscribe, like and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye, take care, thanks for watching.